कोई कर सकता है? Two bodies A and B are being thrown vertically upwards with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively. Find the separation between them after 1 second. ये formula directly. Two bodies are being thrown vertically upward with velocities v1 and v2. Then separation between them at any time. 1 second के बारे में पूछो या 2 second के लिए बारे में पूछो. Directly I can write. Very good. Aisha Fatima has given me the answer. Directly क्या formula लिखोगे? S is equals to v2 minus v1 into t डाल लो. ठीक है ना? सो v2 कितना है बेटा? 10 माइनस 5 इंटू 1. ऐसे वाला क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है. शॉर्टकट इसका ये हो जाएगा मेरे पास 5 मीटर्स. आया सभी को? चलो नेक्स्ट वन देख लो. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा. The distance between the two stations is to be covered in the minimum time. The distance between two stations is to be covered in minimum time. The what is the condition? The maximum value of the coordinate or the retardation of a car cannot exceed the alpha and beta respectively. Find the time of your motion. The distance between two stations is to be covered in a minimum time beta. उसने क्या बोला? The maximum value of the acceleration or retardation. The maximum value of your acceleration or retardation of a car cannot exceed what? Alpha and beta respectively. So find the time of your motion. Find the time of your motion. Find the time of your motion. Clear है? इसको ये फॉर्मूला लगाना है. ये लगाया था मैंने आप लोग को. देखो कहाँ गया है. ये वाला देखो. The particle first accelerates with alpha, then retards with beta. Acceleration दे रखा है, retardation दे रखा है, और maximum acceleration alpha और retardation कितना है? beta. So the total time of the motion t, then the displacement will be equal to how much? S is equals to alpha into beta t square divided by 2 alpha plus beta. ये formula use कर लो directly. So I can write the formula right now here. S is equals to your alpha into beta into t square divided by 2 into alpha plus beta. ग्राफ के द्वारा भी आप याद रख सकते हो उसको. ऐसा ये हो गया इस तरह से. तो पहले एक्सेलरेट कर रहा है विथ योर अल्फा, फिर रिटार्ड कर रहा है विथ योर बीटा, और ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट. इसमें तो ये अल्फा है और ये बीटा है, और टोटल टाइम दे रखा है कितना मेरे को? टी, और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जा रही है यहाँ पर v max. isn't it? This is a graph of your velocity versus your time. तो फॉर्मूला याद है आप लोग को? S is equals to how much? S is equals to alpha into beta t square divided by 2 alpha plus beta. तो इसमें से मुझे टाइम निकालना है, तो टी निकालो. कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2s इंटू अल्फा प्लस ऑफ योर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो टी बन गया, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास 2s. दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा. कैन ऑल्सो बी रिटन एज फिर हम हो जाएगा 2s. सॉरी, ये हो जाएगा 2s, and this will be your 1 by alpha plus 1 by beta. ऐसा भी लिख सकते हो. तो एलसीएम निकालो, यही वाली आएगा. ठीक है, चलो ये वाला भी करना आप लोग को मैंने करवाया था. बेसिक मॉडल है. Two ships are right now 10 kilometer apart on a line from south to north. Two ships are how much beta? 10 kilometers apart on a line from your south to your north. This one is south to north beta. The one further north is been moving towards the west at 40 kilometer per hour, and the other is moving towards the north at 40 kilometer per hour. दोनों की स्पीड सेम है, 40 kilometer per hour. What is the distance of the closest distance and how long they take to reach it? Closest distance of approach का फॉर्मूला है बेटा. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ. तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर. So two ships are 10 kilometers apart on a line from south to north. साउथ से लेके नॉर्थ तक, दोनों के बीच में इनिशियली मान के चलो यहाँ पर है, और ये यहाँ पर है.
तो इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है. So two ships are 10 kilometers apart on a line from south to north, south to north. The one further north, यहाँ पर जो north के पास जो है, is moving towards the west. It started moving towards the west right now with a velocity of 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour. And the other is moving towards the north and this started moving up with your again 40 kilometer per hour towards the north with 40 kilometer per hour. What is the distance of the closest distance of approach and how long do they take to reach it? आप लोग याद होगा मैंने क्या बोला था इसका पहले, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना है इन दोनों का, है कि नहीं. इन दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर से. इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर से. तो पहला स्टेप क्या करोगे आप इसका, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में. दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 40 किलोमीटर पर आवर है और ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से ये ऊपर से जा रहा है, ये बॉडी यहाँ से ऊपर जा रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना. सो दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी. तो दोनों का वेलोसिटी सेम है तो इट विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. ये नॉलेज तो अपने को मालूम है. अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है दो कोऑर्डिनेट्स में तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एंगल बन जाएगा सीधा सीधा मेरे पास 45 डिग्रीज. तो करना क्या है बेटा, इस पॉइंट से हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो मान के चलो ये मेरे पास पॉइंट ये है और ये मान के चलो पॉइंट बी. ये हो गया पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी. ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी. पॉइंट ए से रिलेटिव वेलोसिटी पे हम लोग को क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. इसके ऊपर मैं ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है ना. ये बन जाएगी यहाँ पर एंगल कितना, 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा वाई मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ो, मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली करवाया था इसको बेसिकली, ठीक है ना. तो यहाँ पर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर बी विथ रेस्पेक्ट टू योर ए निकालो. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्रीज. तो cos 90 0 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा मेरे पास 40 होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर 40 होल स्क्वायर. तो बना कितना ये 40 इंटू √2 किलोमीटर पर आवर. तो अब वाई मिनिमा कैसे निकालोगे बेटा, वाई मिनिमा का फॉर्मूला क्या है, देखो वाई मिनिमा विल बी इक्वल टू, कोई बता सकता है कितना हो सकता है. इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, ये हो गया कॉस और ये हो गया साइन, होता है ना बेटा. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर से, isn't it? इस डिस्टेंस को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, देखो जल्दी से क्या हो रहा, इस डिस्टेंस को अगर रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये थीटा इज 90 डिग्रीज एंड हियर आल्सो ये एंगल भी कितनी बन जाएगी मेरे पास, 45 डिग्रीज बन जाएगी. तो ये हो गया मेरे पास 10 किलोमीटर्स. अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली तो ये बन जाएगा यहाँ पर 10 cos 45 और यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास 10 sin 45. ये हो गया 10 इंटू साइन 45 डिग्रीज यहाँ पर. तो ये हो गया 10 sin 45 कितना है बेटा, 1/√2. ये बन जाएगा 10/√2 किलोमीटर. दिस विल बी द वाई मीन. आया सभी को, ठीक है ना. उसके बाद टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को. टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था T is equals to y minima divided by your velocity of the b with respect to your a. y minima कितना है, 10/√2 है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 40 इंटू √2 है. ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आराम से करना है, मैंने बहुत डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट करवाया था. 4√2 इंटू ये हो गया 40 इंटू √2. तो ये 0 और ये 0 यहाँ पर चले जाएगा. तो √2 इंटू √2 कितना बनेगा बेटा, 2. सो 2 इंटू 4 दैट विल बिकम फॉर मी 8, 1/8 सेकेंड. आया सभी को. ये फॉर्मूला कभी भी पास नहीं होता बेटा, डिपेंड्स अपॉन द एंगल, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है. इज इट क्लियर. क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने का मेथड है, ये कंपलसरी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना. अगर कल के दिन आ गया तो फिर परेशानी हो जाएगी आप लोग, ठीक है. चलो ये भी हो गया. ये ट्राई करो एक बार, कोई ट्राई कर सकता है क्या, देखो जल्दी से. 4 persons K, L, M and N initially at the corner of a square of side of D. If every person starts moving with velocity v such that K is always headed towards your
L, and L is towards your M. M is headed always directed towards N, and N towards the K. Then the four persons will meet after what time? मैंने क्लास में इसको करवाया था, कॉन्सेप्ट ट्राइंगल लेके करवाया था, हेक्सागोन लेके करवाया था, याद है किसी को? किसी को याद है ये? बोलना जल्दी। फोर पर्सन्स के एल एम एन, ट्राइंगल लेके करवाया था मैंने आपको, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, याद नहीं है? ये हो गया फोर पर्सन्स. This one is say for example K, this is L, this is M, and this one is your N, isn't it? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा. तो ये हो जाएगी यहाँ से इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस, और ये हो जाएगी ये इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस, और ये हो गया सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ मीटिंग. This is always directed towards this one with a velocity v. V is always directed to this one. This is directed like this, and this is directed like this. ठीक है ना? And closest distance of approach, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा थोड़ा डिस्टेंस. मैंने क्या बोला था, बोलो जल्दी से. कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं. मान के चलो K से लेके मैंने L तक ले लिया, तो इन दोनों के बीच में की जो दूरी है मान के चलो सम d है. तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्रीज. तो ये हो गया K और ये हो गया L, isn't it? So this will be your V is equals to, this one will become how much for me? और कोई बता सकता है? कितना होता है बेटा? ऑलवेज परपेंडिकुलर है. इफेक्टिव विल बिकम हाउ मच फॉर मी? दोनों के बीच में एंगल 90 है. दिस इज V एंड दिस इज योर V. दो वेलोसिटी वेक्टर से राइट नाउ कितना आएगा बेटा? ये इसको ऐसे भी कर सकते हो बेसिकली. ये पूरा डिस्टेंस d है, तो यहाँ पर इसको s निकालो पाइथागोरस थ्योरम में से. तो s की वैल्यू कैसी बन जाएगी बताओ? ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक d है, तो ये कितनी बन जाएगी? d/2. ये एंगल कितनी हो जाएगी? 45 डिग्रीज. तो s की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर योर s इज इक्वल्स टू योर, ये हो जाएगा d/2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, और इसका कंपोनेंट अगर मैं ले रहा हूँ, दिस विल बिकम फॉर मी cos 45. होता है ना बेटा? ये s है, isn't it? s का डिस्टेंस अगर मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली, इसमें हो जाएगा cos 45 और ये हो जाएगा d/2. सो s इज इक्वल्स टू d/2 डिवाइडेड बाय cos 45. cos 45 कितना होगा? ये हो जाएगा d/2. cos 45 इज 1/√2. सो 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2. एक √2 चले जाएगा, तो s की वैल्यू आ जाएगी d/√2. तो V इफेक्टिव कितना बन जाएगा? V इफेक्टिव विल बिकम फॉर मी हाउ मच? V into cos ऑफ योर 45 डिग्रीज, क्योंकि इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लेना है ना बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर लेना है. सो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ 45 डिग्रीज हो जाएगा. सो V व्हाट यू कॉल दैट वन, मैक्सिमा विल बी इक्वल टू हाउ मच, और V इफेक्टिव विल बिकम हाउ मच? ये हो गया V इफेक्टिव. V इफेक्टिव इज V into cos 45. ये हो जाएगा V, इसका यहाँ पर एंगल निकलेगा V into cos 45. तो ये बन जाएगा मेरे पास V into cos 45 इज 1/√2. ये हो जाएगा V/√2. तो टाइम कितना निकलेगा? टाइम T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई योर V इफेक्टिव. तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ मैं बेसिकली, मान के चलो S, एंड V इफेक्टिव कितना है मेरे पास? लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ ना. तो S इज इक्वल्स टू D/√2 एंड डिवाइडेड बाई V/√2. तो कितना बन जाएगा बेटा? D/V. ठीक है, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को लिया बेटा, इस पॉइंट को ले लिया यहाँ से यहाँ तक. डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्राई करेगा और इट विल बी मीटिंग एट द सेंटर. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. टोटल डिस्टेंस मान के चलो यहाँ से यहाँ तक d है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस d बनेगा. तो इसका हाफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2. तो इसको रिजॉल्व कर लो बेसिकली, ये हो जाएगा मेरे पास cos 45 और ये हो जाएगा cos sin 45. तो cos 45 अगर लिख रहा हूँ तो d/2 cos 45 इज इक्वल्स टू d/2 डिवाइडेड बाई s. सो s इज इक्वल्स टू d/2 into 1/√2. तो s वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर. तो उसके बाद V इफेक्टिव, यहाँ पर V कंपोनेंट इस तरह से, ये भी V कंपोनेंट इस तरह से.
इन दोनों को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली राइट नाउ। तो ये हो जाएगा cos 45, सो v cos 45 और ये रिलेटिव वेलोसिटी। तो v इफेक्टिव कितनी बन जाएगी, v इफेक्टिव विल बिकम फॉर मी v into cos 45 that is equals to v by √2। सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय v इफेक्टिव, सो डिस्टेंस हो गया d by √2 और v इफेक्टिव हो गया v by √2। तो आंसर इज इक्वल्स टू d by v। मैं लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को आप लोग को स्क्वायर लेके भी करो बोल के ट्राई करो बोल के बोला था, आप लोग को याद है कि नहीं है कि याद है ना? चलो ये तो हो गया। अब ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है बेटा इसका, क्योंकि ऐसे वाले मॉडल हम लोग करे नहीं थे, इसलिए मैंने एक मॉडल ले लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ए बॉल इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड्स, इट हाइट वेरीज विद द टाइम एज शो। देखो ग्राफ दे रखा है इसका, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 5, 5 से लेके 6 तक इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है पैराबोलिकली। सो बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, its height varies with respect to time as follows. If the acceleration due to gravity is 7.5 meter per second square, then the height h will be equal to your how much? Then the height h will be equal to your how much part of relation. तो देखो बेटा, जब हाईएस्ट पोजीशन के पास जा रहे हो बेसिकली, तो यहाँ पर से जब अब तक यहाँ जाओगे बेसिकली, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? 0। सिर्फ आई एम यूजिंग द रिलेशन, और बॉडी आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर 80 अगर ले लो, that highest position velocity हो गई 0, initial velocity है u and acceleration due to gravity आ जाएगी -g into t कितना दे रखा है उसने 3.5 seconds। होता है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है बेसिकली एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा टाइम कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है बेसिकली, सो यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 2 एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 5। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना बन सकता है, इन दोनों का आधा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, देखो 7/2 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है ना। तो टाइम हो गया मेरे पास 3.5। तो इनिशियल वेलोसिटी बने कितनी, देखो u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u तो हो गई मेरे पास, u निकालना, ये तो 0 हो गया, सो u इज इक्वल्स टू 3.5 इनटू योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 7.5, है कि नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू g की वैल्यू इज 7.5 इनटू 3.5, कितना बन रहा है देखो, u इज इक्वल्स टू 7.5, 5 5 5, तो ये बन जाएगा 5 से 25, तो ये बन जाएगा 26.25, 7 6 7 3 26, ये हो जाएगा 26.25, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो सकता है बताओ, y इज इक्वल्स टू योर u इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये y है और ये हो जाएगा h। अगर मेरे पास y आ गया तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर h। तो y निकालने का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ योर a हाफ ऑफ योर g इंटू टी स्क्वायर। वर्टिकल वेलोसिटी निकालना है मुझे y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पर 26.25 इनटू टाइम t कितना बनेगा बेटा, a ball is being thrown upward, its height varies with the time as follows. If the acceleration due to the height due to gravity is 7.5, then the height h will be equal to your how much? यहाँ से यहाँ तक पहले y निकालो, यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पर नहीं निकाल रहा मैं, यहाँ से ए पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जाने के लिए टाइम कितना है मेरे पास 1 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है 26.25, ये हो गया टाइम इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी माइनस, दिस इज योर हाफ इनटू जी की वैल्यू दे रखा उसने 7.5 इनटू टाइम हो गया 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है देखो 26.25 माइनस ये बनेगा कितना बेटा, ये बन जाएगा 3.75, 26 माइनस 3.75 यानी
75 26, तो ये बन जाएगा 22.5, होता है ना बेटा? 50, 75 में से 25 निकाल रहे हैं 50 आ जाएगा, इसीलिए, और 26 में से 33 निकाल रहे हैं 22। अब पूरा y प्लस h ले लो फ्रॉम द ग्राफ, y प्लस h एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बेटा? y प्लस ऑफ योर h, ये देखो ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है बेसिकली, तो क्या हो जाएगा? देखो ये अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर मैं h मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये तो प्रोजेक्टाइल हो गया ना बेटा, तो ये h और ये हो गया y, सो y प्लस ऑफ योर h, देखो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करो इस मॉडल को। y प्लस एच इज इक्वल्स टू योर u इंटू टी, टी वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू ये इंटू योर 2 स्क्वायर। तो मेरे पास h की वैल्यू, h की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो y प्लस ऑफ योर h इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 26.25 है मेरे पास, इंटू 2 माइनस हाफ इंटू ये हो जाएगा 7.5 इंटू 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो ये कितना बन रहा है? देखो 26.25 इंटू 2, ये वैल्यू कितनी हो रही है? देखो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 3.75, सो 26.25 इंटू 2 माइनस 3.75 इंटू योर 4, कितना आता है? 32.50, कितना? 26.25 into 2, 32.50. 32.50 माइनस ये 3.74 इंटू 4, कितना है? 15. 15 आ रहा, चलो 15 आ गया, 15. ओके चलो, तो 32 माइनस 32.50 माइनस 15 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा? 3.75 है ना? हाँ 17.50. कितना आ रहा है? 17.50, ठीक है। y प्लस एच इज इक्वल्स टू दिस मच, y की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, y की वैल्यू कितनी है? देखो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 22.50, तो दिस वन इज 22.50 प्लस h इज इक्वल्स टू 17.50, तो h की वैल्यू कितनी बनी बेटा? 5. कितनी बनी? 5 sir. 5 तो ऑप्शन में नहीं बता रहा ना, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स, कहीं कैलकुलेशन में गलती किया है क्या? देखो मैंने, ठीक है चलो, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो बेटा, लेकिन मेथड यही वाला है बेसिकली। 32.50 हो रहा, कितना? 26.2. ये y प्लस एच का इक्वेशन है ना ऊपर, हाँ वो 52.50 होता कैसा? ऊपर वाला, ये वो वाला? 26. हाँ. तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी वैसा बोला तो। हम्म. y प्लस एच में 26.25 इंटू 2 कितना आ रहा? ये वैल्यू कितनी है? 15.4. कितना? 52.5. 52.5, हाँ मैंने भी चेक नहीं किया यार, इतना 25 से 2 तो 50 के ऊपर ही आना चाहिए था, सॉरी। और ये कितना आया? 3.75 इंटू 4, ये कितना था? 15 था. 15, ओके। 52.5 माइनस 15, ये कितना आ रहा? देखो 37.5. 37.5, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? y की वैल्यू 22.50 प्लस h, तो h की वैल्यू कितनी आ रही? देखो ये भी 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 37 माइनस ये हो जाएगा 22, कितना आ रहा? देखो 15 आ रही sir. 15 आ रहा.
So h must be equal to 15 meters. अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार प्रैक्टिस करो बेटा, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। सो एक उसलिए निकाला था मैंने, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस कंपलसरी करना, इतना लेवल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मॉडल मैंने दे दिया, ट्राई करो। नेक्स्ट वन, stalled escalator in 90 seconds when standing on the same escalator. Now moving, he is being carried in 60 seconds. The time it would take him walk up and moving escalator will be equal to how much? ऐसा वाला प्रॉब्लम मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में करवाया था बेसिकली। अच्छा वाला क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो जल्दी से। A person is walking up a stalled escalator, जैसे मेट्रो वगैरह में अपने पास एस्केलेटर्स होते हैं, ये हो गया मेरे पास एस्केलेटर। पहले ये एस्केलेटर स्टेशनरी है, ये मेरा एस्केलेटर क्या है, स्टेशनरी है बेसिकली। तो ए पर्सन वॉक्स अप द स्टेल्ड एस्केलेटर इन 90 सेकंड, यानी एक पर्सन यहाँ पर ठहरा हुआ है, ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना ले रहा है, 90 सेकंड्स ले रहा है बेसिकली। When standing on the same escalator, now he is being carried in 60 seconds. अगर चल के जा रहा तो टाइम 90 सेकंड ले रहा है। यही एस्केलेटर के ऊपर अगर ये अब मैंने अब ऑन कर दिया, तो ये एस्केलेटर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाने के लिए टाइम कितना ले रहा है, 60 seconds ले रहा है, क्योंकि this started moving in the upward direction and this person from here is being carried here in the 60 seconds. Then the time it would taken him to walk up the moving escalator, यानी अगर ये ठहरे नहीं सर का, ये मूविंग एक्सकेलेटर पे ही मूव करना शुरू करा, 3 केसेस हो गए देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ये मूव करना शुरू करा तो कितना टाइम लगेगा पूछ रहा है। एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और मैन भी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, बता सकता है कोई? फर्स्ट में देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, ये लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा ना बेटा, सभी के टाइम के लिए ये लेंथ जो है ना कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द एस्केलेटर कभी भी हो अपने पास कांस्टेंट है। तो पहले वाले में मान के चलो, इफ यू इज द स्पीड ऑफ द पर्सन, ये अब ऊपर जा रहा है तो मुझे मालूम नहीं था, तो इट इज मूविंग विथ योर यू, isn't it? And the escalator is been moving, तो इसके लिए टाइम हो गया t is equals to फर्स्ट कंडीशन के लिए डिस्टेंस traveled is l divided will be u, यानी this time will be equal to how much for me, 90 seconds। ये हो गया फर्स्ट सेकंड, सॉरी ये कहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड। उसके नेक्स्ट बात, it is been traveling in how much time बेटा, 60 seconds। तो मैं इसमें से पहले u निकाल लूं, तो u की वैल्यू कितनी बन जाएगी, u is equals to l by your 90। सेकेंड केस में अब ये पर्सन इसके ऊपर मूव कर रहा है, मान के चलो जब इसकी पर्सन की वेलोसिटी ऊपर जाने में v है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ l by v इज इक्वल्स टू, ये टाइम कितना ले रहा है अभी, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर से मैं v निकाल सकता हूँ, तो v इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, l by 60। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर टाइम t लग रहा है इसको, तो ये टाइम निकालो। सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच, टाइम टेकन t इज इक्वल्स टू l by, अगर पर्सन मूव कर रहा है तो u, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है तो v, तो t इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय u प्लस v। तो t इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, l by your 90 प्लस ये हो गया l by your 60। तो al gets cancel, so this is your 1 by 90 plus 1 by 60। एलसीएम करना तो आप लोग को मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, क्या बोल गया एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम मैंने आप लोग को शॉर्टेस्ट मेथड में करने का बताया था। 3.6 कितना, 20 seconds, 30, 72 seconds, 18 seconds, 3.6, 36 seconds दे रहा बेटा, कैलकुलेशन देखो एक बार, 36 सेकंड आ रहा 36 seconds। यस सर। Okay, हाँ चलो, सर 36 seconds will be the answer। ये मॉडल्स पूरे एक से दो बार फिर एक बार करो बेटा, दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये वाला भी देख लो एक बार जल्दी से। A point moves with uniform acceleration and v1 and v2 and v3 denotes the average velocities in the three successive intervals of time t1, t2 and t3
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज योर करेक्ट फॉर्म? चलो करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गए? A point moves with uniform acceleration, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, isn't it? So a point moves with uniform acceleration and v1, v2, v3 denotes the average velocities in the three successive intervals of time t1, t2 and t3. Which of the following relations is correct? ये से लेके ये b तक जा रहा है, then b से ये c तक जाएगा, then c से ये d तक जाएगा. So यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t2 और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t3. ठीक है ना? तो अब ये देखो बेसिकली a point moves with uniform acceleration, a point moves with uniform acceleration and इसकी velocity यहाँ पर कितनी है बेटा? v1 और इसकी velocity यहाँ पर v2 और इसकी velocity यहाँ पर v3, isn't it? So at point A velocity कितनी है? v1 and point C it is nothing but of your right now v2. ये हो गया है पॉइंट, कहाँ गया है? The point moves with uniform acceleration v1, v2, v3 denotes the average velocities in three successive intervals of time. Successive intervals of time बोल रहा है ना, तो यहाँ पर अगर मैं v1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे v2 लेना पड़ेगा. सक्सेसिव बोल रहा है ना, इमीडिएट नहीं बोल रहा है. सक्सेसिव मतलब इसको छोड़ के इसको. So at point A, if I'm taking the velocity v1, then at point C we can take it as of your v2. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो इस पे प्लस वेलोसिटी v1 है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2 हो जाएगी, isn't it? So चेंज टाइम कितना हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम मिला मुझे, तो ये हो गया t1 प्लस ऑफ योर t2. ठीक है ना? तो Yes. इसका एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ पहले. So acceleration कितना बनेगा बेटा? Acceleration ये is equals to change in velocity delta v divided by total time interval. Change in time interval. तो delta v कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक? This will become for me v2 minus v1. यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है मेरे पास? t1 प्लस ऑफ योर, ठीक है ना? ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉर द सक्सेसिव टाइम इंटरवल. ठीक है ना? सिमिलरली वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? v2 and that of your v3 at d will be equal to how much for me? v3. यानी एट ए पॉइंट सक्सेसिव टाइम इंटरवल के पास अगर यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास v2 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? v3 एट पॉइंट ऑफ डी, सक्सेसिव टाइम इंटरवल के लिए. तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना बना मेरे पास? t2 प्लस ऑफ योर t3. इस मेथड को छोड़ के कोई और मेथड करोगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा बेटा. सो बी लिटिल बिट केयरफुल विद दिस वन. सो सक्सेसिव इंटरवल में अगर मैं b के पास v2 ले रहा हूं, तो नेक्स्ट वेलोसिटी v3 बनेगी एट योर पॉइंट d. तो टाइम कितना बनेगा? t2 प्लस ऑफ योर t3. तो इसके लिए भी कॉमन एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं मैं. ये इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ये v3 माइनस ऑफ योर v2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना आ जाएगा? t2 प्लस ऑफ योर t3. दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों की इक्वेट कर दो राइट नाउ. v2 minus v1 divided by your t1 plus of your t2 will be equal to v3 minus v2 divided by your t2 plus of your t3. ठीक है ना? तो इसको मैं पूरे v1 टर्म्स अगर मैं एक जगह ले लो, तो ये हो जाएगा v1, ये इधर आ जाएगा माइनस ऑफ योर v2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा t1 प्लस ऑफ योर t2, दैट विल बी इक्वल टू, ये v2 यहाँ पर ही रहेगा, ये v2 अगर मैं इधर लेके चले गया तो v3 हो जाएगा ना ये, तो v3 माइनस v2, तो ये v3 है, ये माइनस v1 है, तो इस माइनस को अगर निकाल दो तो v2 माइनस ऑफ v3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय योर t2 प्लस ऑफ योर t3. माइनस निकाल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं. ये देखो माइनस ऑफ v2 यहाँ पर ले गया तो प्लस हो गया, ये माइनस है, तो v1 माइनस ऑफ v2, ये प्लस है, इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो आई कैन राइट दैट वन एज ऑफ योर v3 माइनस v2, सॉरी नॉट v2 माइनस v3, गलती कर दिया मैंने यहाँ पर. तो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर v3 बराबर ये साइन कन्वेंशन माइनस ये बन जाएगा v2 बराबर है v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2. ये t2 प्लस t3 है, सॉरी देखो एक बार चेक करो, v2 ही होगा ना, v2 माइनस ऑफ v3 डिवाइडेड बाई योर t2 प्लस ऑफ योर t3. ठीक है ना?
तो ये हो गया इसका रेशियो। तो ऑप्शंस में क्या मैच कर रहा है देखो राइट नाउ यहाँ पर V1 minus V2 is to V2 minus V3 is equals to T1 plus T2 is to, हाँ तो सेकंड ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर V1 minus of V2 is to ये हो जाएगा V2 minus of your V3 will be equal to, ये कितना बन जाएगा T1 plus of your T2 is to, ये बन जाएगा T2 plus of your T3। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, रेगुलर है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो V1 माइनस ऑफ V2 is to V2 minus of your V3 will be equal to T1 plus T2 is to T2 plus of your T3। ठीक है ना? Yes, sir. चलो, और थोड़े अच्छे वाले मॉडल्स करवाना था बेटा, अभी तो टाइम परमिट भी नहीं हो रहा। अगर हुआ तो आज लेट इवनिंग में क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड टुमारो इज संडे, देन यू ट्राई टू रिवाइज कंप्लीट काइनेमेटिक्स। कल काइनेमेटिक्स पे मैं 2 असाइनमेंट्स आप लोग को भेजूंगा एज ए सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम ऑन संडे, एंड फ्रॉम मंडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स बेटा। एंड 2 दिन में पूरा सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट्स में खत्म करने वाला हूँ। सो बी लिटरली गोइंग रियली फास्ट, बट मैं वही नेक्टार पढ़ाऊंगा जितना नीट के लिए रिक्वायरमेंट है। मैं अननेसेसरी थियरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग उसका थियरी इन डिटेल में पढ़िए, नोट्स भी मैं आप लोग को डिटेल में भेज देता हूँ। बट इन शॉर्ट मैं आप लोग को 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर पूरा सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट से क्वेश्चंस कैसा करना निकालूंगा। एज वी आर हैविंग ए क्लास ऑफ ओनली 35-37 मिनट्स, तो शायद 3 दिन के जगह 3 दिन थियरी बन जाए या 2-3 दिन न्यूमेरिकल्स बन जाए, तो 1 हफ्ता मान के चलो रफली सेमीकंडक्टर्स, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग सेमीकंडक्टर्स और लॉजिक गेट्स को नहीं करेंगे। एंड देयर आर डैम